Yes. At one glance, elements of weather and climate clear. Now, now six major control, of climate clear discuss. Factor affecting clear role of western disturbance in Indian climate. Indian monsoon is derived from the Arabic word mausam and factor now today yesterday discussed about the yearly cycle of season like a monsoon type of climate characteristics. So four season: cold weather season, hot weather season, advancing monsoon season. Now hot weather season discuss. Yes, today you the last type of the season, the monsoon, retreating monsoon. It is also known as the post monsoon by the October and November. By October and November, with apparent movement of the sun toward the south, the monsoon touched the low pressure area, just the equatorial. So here the low pressure area. So 0 degree equator, they create the low pressure area due to insolation coming solar radiation. The monsoon touched the low pressure through the northern plain. अब यहाँ देखो ये नॉर्दर्न प्लेन का रीजन एरिया यहाँ पर becomes weaker. By beginning the October, the monsoon withdraw from the northern plain starting में, but retreat. Monsoon catches by the clear sky and rise the temperature. So day temperature are high, soil is moist, night are cool and pleasant. So this is known as the October heat. In the season half of the October, mercury being to fall rapidly in the northern India. So low pressure condition over the north and western India. Low pressure. अब देखो कि नॉर्दर्न इंडिया और ये वेस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, बट वी नो जस्ट डायरेक्शन ऑफ विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. साउथ वेस्ट विंड ब्लो in southern hemisphere and touch equatorial and turn in the northern hemisphere. The occurrence of the cyclone, do you know the cyclone? Just you know the center of create the low pressure belt and all directions, just high wind, it means the high pressure region. High pressure wind it create touch the low pressure area. Low pressure area में वो touch कर रहा है. The occurrence of the cyclonic depression originate over the Andaman and Nicobar Island. Over the Andaman and
निकोबार आइलैंड, बस अंडमान आइलैंड। एंड कॉज क्या है? द हेवी रेनफॉल। सो हेवी रेनफॉल इज द southern portion heavy rainfall due to wind. So wind, कारण क्या है कि विंड जो अपने साथ दो लोडेड मॉइस्चर अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर लिखा था, और ये सदर्न पार्ट्स में द सदर्न टिप ऑफ द इंडिया इन टेरिटरी इज द अंडमान रीजन एरिया, हेवी रेनफॉल करता है। और दूसरा क्या है कि द ट्रॉपिकल साइक्लोन often the very destructive and the affect the coast of Odisha, West Bengal, and thus here the Bangladesh region area. But two region area, the maximum they receive the rainfall. The thickly populated delta. So just the eastern coastal region area, ये देखो ईस्टर्न कोस्टल रीजन एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन, जहां पर एक तो ये यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है, बट कृष्णा कावेरी गोदावरी एंड महानदी, महानदी, ठीक है, द महानदी, कृष्णा कावेरी गोदावरी एंड महानदी डेल्टा frequently struck by the cyclone, and you know which the great damage to the life and the property, life of the property. Now one question, define the term the October heat. किसको कहते हैं अक्टूबर हीट? एनीबॉडी? अक्टूबर हीट, मुस्कान, रोमिता, एनीबॉडी? No. The weather becomes rather oppressive during the day and commonly known as the October heat. In the second half of October, in the second half of the October. Now second portion, distribution of rainfall. Due to relief features and climatic condition, variation of the relief features, some region, the high land, low land, some region, delta region area, plain region area, plateau region area, western coastal region area. So uneven distribution of the major landform, mountain, plateau, plain, and climatic condition vary from place to place due to temperature or rainfall, due to latitudinal variation and place. But the western coast is just the Sahyadri range, western coast, run of Kutch to Kerala, western coast, and northeastern, the Himalaya region area, northeastern Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh region area, get about 400 centimeter rainfall due to create the two branches, one the Arabian branch and second Bay of Bengal branch, Arabian branch and Bay of Bengal branch. Both area heavy
rain bring heavy rain, but the less than the 60 सेंटीमीटर द वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। अब देखो कि दो ब्रांचेज हैं। पहला ब्रांच है जो जैसे ही यहाँ से लोडेड मॉइस्चर जैसे ही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर वेंट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर वेंट and subtropical high pressure went to equatorial low pressure in the both hemisphere. But due to here the three major is Garo, Khasi और Jaitiya. So maximum receive the rainfall loaded moisture जब यहाँ से हवा चलती है काफी तेज से, तो अब अपने साथ काफी मात्रा में मॉइस्चर को लेकर चलती है। और जैसे ही मॉइस्चर जो है ये हिली एरिया में टच करता है, स्ट्रैक करता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक उसी तरह अरेबियन सी से भी चलते हो, ये सहादरी रेंज देख लो, द वेस्टर्न घाट का यहाँ टकराता है और इस जगह पर काफी बारिश होती है। मैक्सिमम 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, बट द रेनफॉल अब यहाँ से फिर वो डिक्रीज करता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर विंड का ब्लो हो रहा है, वेस्ट के ऊपर धीरे धीरे आपका नॉर्दर्न प्लेन होते हुए आया और अरावली के पास टकराया है। फिर यहाँ पर आके लेस रेनफॉल द 60 सेंटीमीटर, it is less than 60 centimeter in the western Rajasthan, Gujarat, Haryana and Punjab. The rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau. अब ये देखो ये रीजन एरिया है, ये रीजन जस्ट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंटीरियर पार्ट ड्यू टू क्या कारण है, तो ड्यू टू रेन शैडो एरिया, जो वेस्टर्न घाट से जो लोडेड मॉइस्चर है, तो इस जगह पर सहादरी रेंज में सबसे ज्यादा बारिश होती है और रेस्ट जो है इधर आ जाती है, तो यहाँ पर कम बारिश होती है। आपका ये दक्कन प्लेट्यू रीजन एरिया और छोटा नागपुर रीजन एरिया। कारण क्या है, तो इट इज एन रेन शैडो एरिया। नाउ नेक्स्ट एरिया, सो जस्ट द नॉर्दर्न हिमालय रीजन एरिया, लेह, लद्दाख and Jammu and Kashmir region area, Jammu and Kashmir. So here they receive the little precipitation, but due to low temperature, है ना, due to high altitude, the Himalaya region area covered the huge mass of ice. So Himalaya gets the heavy rainfall. So distribution, अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल का एरिया देखो, तो सीजनल रेनफॉल और एनुअल रेनफॉल। सो मैक्सिमम above the 400 तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रीजन एरिया, एंड सेकेंड this region area the western Ghat region area, and here the Andaman region area, 200 to 400 region area, so Penny northern plain region area and seven sister Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram region area, some part of western Madhya Pradesh region area. So due to decrease the rainfall, but here the 160 to 100 centimeter rainfall, the western part of Gujarat and Rajasthan region area, but here the high altitudes above the 36 degrees 7 minutes latitudinal area, so most the upper part of the India's landmass, Himalaya region area, so at the very less rainfall. Annual rainfall also
above the 400 centimeter rainfall in Garo Khasi Jaintia region area and Western Ghat region area. So distribution of the rainfall due to uneven distribution of the relief feature and climatic condition. The nature of monsoon. Annually rainfall is highly variable from the year to year, and variability is the high in the region of low rainfall. Such a part of like a Rajasthan region area hai, Gujarat region area hai. Now the last topic, the monsoon as a unified bond. There is a great diversity of climatic condition. The whole India's landmass, the relief features, location of the relief features देखो, or climatic condition. So climatic condition due to diversity of climatic condition, due to the major landfall, peninsular region area, far from the sea, the central part of India, and high the mountainous region area. Temperature, climatical condition or temperature vary due to the latitudinal variation. But इक्वेटोरियल रीजन एरिया के पास जाएंगे, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मोस्ट सदर्न, ये जब के कुमारी कन्याकुमारी के पास का टेम्परेचर देखते हैं और फिर जैसे जैसे साउथ से टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर रहते हैं तो हाई अल्टीट्यूड एंड लो टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज करता है. कारण क्या है कि वेरिएशन ऑफ द लैटिट्यूडनल वेरिएशन है. लोकेशन क्या है? ड्यू टू द लोकेशन हम मान लो देख लो कि हिमालय रीजन एरिया है, लोकेशन देख रहे हैं कि पेनिनसुलर रीजन एरिया है, लोकेशन देख रहे हैं ये नॉर्दर्न प्लेन रीजन एरिया है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है. तो इक्वेबल क्लाइमेट, इक्वेबल इन द समर एंड विंटर की बात करें, इक्वेबल क्लाइमेट नाइदर वेरी हॉट एंड नाइदर वेरी कोल्ड, जिसको मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है. बट एक्सट्रीम चाहे वो रेनफॉल की बात करो, दिल्ली की बात करते हैं, सेंट्रल की बात करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर भी है और मैक्सिमम लो रेनफॉल भी है. हाई टेम्परेचर भी होता है और लो टेम्परेचर भी हो. कारण क्या है कि फार अवे फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड. सो लो हाई प्रेशर ड्यू टू द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. बट इंटीरियर पार्ट अब देखते हैं कि पेनिनसुलर कवर द थ्री साइड द वाटर बॉडीज है ना. सो Deccan Plateau is surrounded by sea on the three side. So one eastern part the Bay of Bengal, western part Arabian Sea, and southern part the Indian Ocean. Therefore had the moderating influence of the climate तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज. तो मॉडरेटिंग कोलकाता, चेन्नई, मुंबई रीजन एरिया, यहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट है क्योंकि वो तीनों कोस्ट के किनारे है. कोस्ट कहते हैं कि कोस्ट के किनारे द इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चेंज द क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंज टेम्परेचर. बट द पीपुल होल ऑफ द मॉनसून पूरा एरिया की बात करते हैं, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन हो, सदर्न प्लेन हो, वेस्टर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट हो, पेनिनसुलर रीजन एरिया हो, आसाम प्लेन हो या इंडस प्लेन हो, गंगा प्लेन हो, हिमालय रीजन एरिया, all over the country. So just the dynamic hot spell in the summer. The monsoon of India also influence the flora and fauna. The natural vegetation is true index of climate.
कारण कि डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, तो वेरिएशन है, तो उस पर भी आपका मानसून का प्रभाव पड़ता है। जहां अगर मान लो कि सपोज करो इन द डेजर्ट रीजन एरिया है, डेजर्ट रीजन एरिया है, ड्राई लैंड है, हॉट टेम्परेचर है, लूज लेस फर्टिलिटी ऑफ द लैंड है, तो ड्यू टू द लेस द रेनफॉल वहां क्या है, अबाउट द 60 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है। तो प्लांट जो है, प्लांट के लिए सबसे ज्यादा आपका वाटर और सॉइल दोनों जो है प्लांट के लिए एक समझो कि टॉनिक का काम करता है। फर्टाइल सॉइल रहेगा, वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहेगा, तो नेचुरली प्लांट काफी ग्रो होगा। मगर रीजन क्या है, तो डेजर्ट रीजन एरिया है, एरिड एंड सेमी एरिड एरिया है, जहां का क्लाइमेटिकल कंडीशन काफी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिकल कंडीशन है, लूज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है, तो नेचुरली प्लांट जो है वो काफी शॉर्ट हाइट का प्लांट रहेगा। फिर उसी डेल्टाइक रीजन एरिया जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, फर्टाइल सॉइल है, इन्फ्लुएंस जो साइक्लोन का इन्फ्लुएंस है रेनफॉल का, तो प्लांट काफी ग्रो करता है। तो प्लांट और एनिमल ये दोनों जो है इंडियन मानसून पर उसका काफी प्रभाव पड़ता है। अब मान लो सपोज करो कि नॉर्दर्न पार्ट के एरिया करते हैं, याक है या कश्मीर स्टेट की बात करते हैं, वो चूंकि वो वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन पे अपने आप को वो एडजस्ट किए हैं। अगर उसी एनिमल्स को हम अगर दूसरी जगह रखते तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इन्फ्लुएंस तो क्लाइमेटिकल कंडीशन, चाहे वो टेम्परेचर और रेनफॉल वो दोनों इन हाईली इन्फ्लुएंस इट्स द फ्लोरा एंड fauna. But the water of agriculture activity is provided by the monsoon wind. ये availability of the water. India is an agricultural country. यहाँ पर 80% people डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्स इरिगेशन फैसिलिटी। अगर इरिगेशन फैसिलिटी बेहतर रहा तो नेचुरली है कि आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो वाटर फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, चाहे वो रबी की बात करो या खरीफ की बात करो, कॉमर्शियल क्रॉप की बात करो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करो, तो वाटर, अब वाटर मॉनसून में कहता है कि जानते हो कि इंडियन फार्मर, पहले क्या था कि इंडियन ट्रेडिशनल की जब बात करते हैं, इंडियन फार्मर जो थे वो वेट करते थे, मॉनसून विंड का वेट करते थे, रेनफॉल का। अगर टाइमली अराइवल हो गया, अगर टाइमली आपका अराइवल हो जाता है तो नेचुरली है कि आपको बारिश मिला, उसके पानी मिला, जिसके फसल को काफी फायदा हुआ। और कभी कभी क्या होता है कि टाइमली नहीं आता है ड्यू टू द विंड के वेरिएशन के कारण। सो टाइमली अगर बारिश देते एग्रीकल्चर आपका जो है वो फेल्यूर हो जाता है। और दूसरा यही नहीं है, पूरे इंडियन कल्चर को फेस्टिवल्स जो है, यहाँ के जो रहन सहन है, वो सारा आपको मौसम पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल इन इंडिया दैट आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल साइकिल may be known as the different name in the different part of the country, है ना, but they celebrated is decided by the monsoon। तो फेस्टिवल्स को भी हम लोग देखते हैं। The seasonal alternation of the wind system and associated the weather condition provide the rhythmic cycle of the season. Even the
uncertain rain and the uneven distribution, uneven distribution are very much typical of the monsoon. Typical of the monsoon. The river valley, आप देखो कि रेनी सीजन एरिया की बात करते हैं, जब हम लोग रेनी सीजन एरिया बात करते हैं तो नेचुरली है कि रिवर का वैली है, चाहे वो गंगा वैली हो, कृष्णा वैली हो, हाँ, या इंडस वैली हो, आसाम वैली हो, जो रिवर, द पाथ ऑफ रिवर, वो जब पाथ ऑफ रिवर का नेचुरली है कि वाटर का जो लेवल जब वो हाई हो जाता है, द विच कैरी द वाटर ऑल्सो यूनाइट एट द सिंगल रिवर वैली यूनिट, और जहां चारों तरफ से बारिश की पानी आया और वो रिवर में आकर मिल गया, तो नेचुरली है कि जैसे ही मिल जाता है तो आपको पूरा क्या होता है, वाटर का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण अगर वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो उसमें दो तरह की बात होती है कि जब वाटर का लेवल अचानक बढ़ गया तो देयर द बर्थ ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, जहां एक्सेस रेनफॉल हो रहा है, जहां मूसलाधार बारिश हो रही है, वो एरिया की बात करें, चाहे वो आसाम है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ बिहार है, जहां पर हिमालय रीजन, नेपाल हिमालय से कृष्णा का कोसी रिवर का के वाटर लेवल हाई हो जाता है। जैसे वाटर लेवल हाई हो जाए तो अब वो क्या होगा, तो वो अपने पाथ से अलग हो जाता है और वो पूरे एरिया को क्या कहता है, स्प्रेड कर जाता है, जिसके कारण फ्लड आ गया। मगर दूसरे एरिया देखिए तो फ्लड और ड्रॉट, जहां पर लेस रेनफॉल है, वहां का लैंड जो है वो क्रैक कर जाता है, क्रैक कर गया, तो ये दोनों द ह्यूज लॉस लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये दो तो अनसर्टेन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के कारण है। तो रेनफॉल कहीं ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, वो एरिया का सिचुएशन देखिए, जहां पर कम रेनफॉल हो रहा है उस एरिया का कंडीशन देखिए। दोनों जगह पर जो है क्लाइमेटिक नेचुरल कैलेमिटीज जो है, जिसके कारण लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। नहीं, नाउ your chapter complete. Any question regarding your side? Now just the southwest monsoon and northeast monsoon, southwest monsoon and northeast monsoon, just discuss, डिफरेंस करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जिसको हम लोग एडवांसिंग मानसून है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून रिट्रेटिंग मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट to northeast from June to September. These are onshore the humid wind because they blow from the sea to land. There are the warm wind, or they come from the lower latitude near the equator. इक्वेटर के पास, ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण है ना। इक्वेटर के पास क्या है, हाई टेम्परेचर है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाता है, और विंड जो है साउथ वेस्ट
साउथ वेस्ट से विंड ब्लो हुआ सब ट्रॉपिकल सदर्न हेमिस्फीयर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में है, जिसके कारण क्या हुआ कि द वार्म एंड ह्यूमिड विंड कॉज वाइड स्प्रेड द रेनफॉल. The wind are also known as their uncertain है. Retreating monsoon का देते हैं, they are from the north east to south west. नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट क्यों? साउथ वेस्ट की आ रहा है प्लेन रीजन एरिया में. साउथ वेस्ट करें कि द ऑफशोर ऑफ द ड्राई विंड बिकॉज दे द ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी, और ये ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड. दे आर rather cool wind. The cold and dry offshore winds give to the rain the India except the Coromandel coast, and they do not suffer from the virgin. So nature climatic condition, इंडिया का जब क्लाइमेट हम लोग डिस्कस किए उसमें मॉनसून क्या है, टाइप ऑफ मॉनसून क्या है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियाज क्लाइमेट, द मेक 6 फैक्टर. जैसे हम लोग पढ़े थे ना, बताए थे डिस्कस के लैंडफॉल, लैंड LAND लैंड फॉर्म FORMS, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड नियरनेस ऑफ सी डायरेक्शन ऑफ विंड है ना, ओशन क्रेन and relief features, ocean current and relief features, all factors are affecting the India's climate in. But one question for your side, give the answer. The why do the northeast trade wind change their direction while the blowing through the Ganga Valley? ईशान कुमार, ईशान कुमार, स्पर्श जैन, रोमिता, नोबडी. मेरी आवाज आ रही है? Which one of the following causes rainfall during the winter in the northwestern part of India? 4 options: cyclonic depression, western disturbance, retreating monsoon, and southwest monsoon. Tell me, which one of following causes rainfall during winter in northwestern part of India? Option: cyclonic depression, western disturbance, retreating monsoon, southwest monsoon. बोलो रोमिता. Western disturbance, very good. And the wind blowing in the northern plain in summer is known as Lu. Lu, very good. Which one of the following place receives the highest rainfall in the world?